أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear fellows, friends and students, today I want to talk to you something about the abdominal hurry, acute in presentation. That is, I want to discuss something about the food poisoning problem. And it is a very common presentation in the emergency and A&E. I am Professor Sayyid Ali Haidar. I am representing the visiting professor of medicine at Jinasin Medical University. So these are the presentation that the patient comes to you with this. This is how the bloating and the pain and probably history has been taken, and he has taken some food and he is relating to the food. Patient himself or herself relating to this food. A common scenario is this: a couple and their 4-year son took dinner at the local hotel. It is a true story. In Islamabad, it happened. In the midnight, all the members felt nauseated, followed by abdominal pain and repeated vomiting, ended up in the watery loose motions. They were taken to the tertiary care hospital in dawn, where examination showed that the patient was dehydrated, and this was the hotel, restaurant, vomiting, abdominal pain, watery diarrhea. Try it. On examination, the temperature was 100 degrees Fahrenheit. This indicates that the patient is pyrexia. The pulse is 1 in 10 per minute. It is higher. Low volume pulse. Blood pressure, parents is 90/60, lower down. Child BP not taken because unavailability of the relative cough. Small cough is not present. It's not present, and dehydration was positive. But how you will clinically and laboratory assessment of the severity of dehydration in the adults? Easy. Go for the eyes, check the lips, check the tongue, check the buccal mucosa, check the nails, check the palms, and the abdominal wall gets abdominal wall. You can fold the abdominal wall. The folding will be present on the abdominal wall, lateral abdominal wall. You can assess on the limbs also in this session. And history of there is no urination, and the patient has some problems of blackouting associated with it, or as fainting may be present. But in the children it is difficult. How you will assess their dehydration in children? The sign and symptom behavior in mild dehydration, normal, moderate dehydration, irritable, severe dehydration is hyperirritable or too lethargic. Thirst, slight in mild, moderate, it is in the moderate type of thirst, but it is severely intense thirst present in severe dehydration. Turgor, which I said, is normal in mild dehydration, but it is decreased in moderate dehydration. It is greatly decreased. It is folding. Abdominal folds are present on your examination. Anterior fontanelle, normal in mild, in the sunken in moderate. It is markedly depressed in the severe dehydration. Urinary flow, milligram per kilogram per hour. It is difficult to calculate, although just ask it whether some drops have been passed or not. If it is 2 ml, means that sufficient amount of urine is passing. In mild dehydration, it is very less amount of urine is passed, and hardly any urine passed in severe dehydration. Specific gravity, it is 1.020 in mild dehydration. It is 1.020 to 1.030. It is now increasing to very high level. It is concentrated urine
more than 1.030 in severe dehydration. So it depends also on the surface area, how much surface area of the child is involved. It may be calculated also with that formula. The lab test was done with hemoglobin 14.5, TLC was 11,200. It means that it is acute inflammation. It is related to the gastrointestinal tract. Just it will indicate it. Platelet is 41,005. 4,150,000 means that it is a reactive type of thrombocytosis. The number of sugar was 100 milligram. Sodium was 128, is lowered. Potassium 3.3, which is lowered. And chloride 94, it is also lowered. Bicarbonate is 34. It is metabolic alkalosis. Normally it is 22 to 27. It is higher than 27. It means that it is metabolic alkalosis occurs because of the vomiting. Lot of acid is gone from the milli-interior, and it will cause the acids output more, and therefore it is going for the metabolic alkalosis, and it will be compensated by the kidneys. It is in this fashion the kidneys can compensate it. Least absorption from the kidneys. So it will be compensated by the kidneys in any way. If the life is and should be safe, the negative feedback mechanism should work. Questions in the casualty: what are the lackings in the history? Yes. What is the differential diagnosis? What further investigation might be helpful? What are the lines of management? Lacking in the history, that history is not properly taken. Number one, exact time of the entrance in the restaurant, what type of the food they have taken, and then afterwards, after this, are there any comorbids with the parents is concerned? And after that one, for example, it is 10 p.m. or it is 12 p.m., midnight means 12 p.m. to 1 a.m., then what will happen afterwards? It is slightly nauseated, followed by the vomiting, followed by the abdominal pain, flatulence, and distension, and then the diarrhea. And this is very, very typical of what is called acute gastroenterocolitis related with the food. If it is related with the food, then it is called food poisoning. Because differential diagnosis can be made. You will see now. Investigation might be helpful. Yes, I have done, but further investigation can be helpful. What are the lines of management? This is the problem. इसमें होता है कि हैंकी पैकी होता है, बहुत जल्दबाजी करते हैं लोग, और खामखा का जो है वो अनजस्टिफाइड मैनेजमेंट दे देते हैं. सॉफ्ट डेटा इसमें से निकाल लीजिए, जो मैंने अभी भी बताया है. हार्ड डेटा इसका निकाल लीजिए. इसमें फूड पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने बताई आपको. लैकिंग इन द हिस्ट्री भी बता दी है कि ये चीज़ें नहीं बताई. फिर उसके बाद स्टूल फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछा गया है कि 2 मोशन आए हैं, 4 मोशन आए हैं, ये नहीं बताया गया. तो लैकिंग है ये. वो किस टाइप के स्टूल हैं, वाटरी स्टूल हैं, राइस वाटर स्टूल हैं, म्यूकस के साथ हैं, वगैरह वगैरह. ये चीज़ें, स्टूल की क्वांटिटी, क्वालिटी, ये कुछ भी नहीं बताई गई. ये लैकिंग है. इससे आपको अंदाज़ा हो जाता था कि क्या है ये पॉसिबल इटियोलॉजी बिहाइंड. डिफरेंशियल एक्यूट डायरिया इन अडल्ट में फूड पॉइजनिंग है, फूड एलर्जी है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस है, डिसेंट्री है, ट्रैवलर्स डायरिया है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया. अब यहाँ देखें, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इफ इट इज associated with the food poisoning, the food, history of food, then it is called food poisoning. But no history, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं दी गई है, घर में खाना खाया गया और एक आदमी को हुआ खाली, यहाँ तो 3-4 आदमी को हुआ. इसका मतलब है कि
जो लोग कहते हैं सबको हुआ है तो ये फूड पॉइजनिंग के जुमरे में आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही आदमी को हुआ तो फिर इसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस कहेंगे फिर आप, जबकि डायरिया के साथ है। विदाउट डायरिया है तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा। एलर्जी है, किसी ने पहले ही बता दिया आपको कि भाई मैं मछली खाता हूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है, या मैं बीन्स खाता हूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त डायरिया हो जाता है, या मैं जो है वो तंदूरी नान खाता हूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है। डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या होती है? इट इज़ द पैसेज ऑफ द म्यूकस एंड ब्लड और म्यूकस oblique blood in the stools associated with tenesmus। टेनेस्मस के साथ है अगर, यानी इसका मतलब है कि कॉलिक है, उसको लिटिल एब्डोमिनल वॉल में सीवियर कॉलिक होता है, फिर स्टूल पास होता है और टेंडर भी हो वो एरिया, तो फिर ये डिसेंट्री होगी, वरना नहीं होगी। ट्रैवलर डायरिया की चीज़ होगी, आदमी चल के आया है कहीं दूर से और उसको दूसरे तीसरे दिन डायरिया हो जाए, इसको ट्रैवलर डायरिया कहते हैं। एंटीबायोटिक की कोई हिस्ट्री है, किसी ने कोई पेंसिलिन ग्रुप लिया है या मैक्रोलाइड्स लिया है, उसके बाद डायरिया हुआ है तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कराएगा। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इट इज़ रिलेटेड विद द क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल। इसकी पर मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इसकी फूड पॉइजनिंग की। एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन में अगर जाएँ तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जिसमें आपको मालूम है कि रोटा वायरस है, पार्वो वायरस है, और ये सारे वायरसेस का ग्रुप है, राइनो वायरसेस का, एंटीरो ग्रुप ऑफ वायरसेस। इसमें फूड पॉइजनिंग है, बैक्टीरियल एंटेरोकोलाइटिस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सीरिक डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक्यूट डायरिया होता है। पैरेंटल डायरिया वो डायरिया है जिसमें इन्फेक्शन, जैसे एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ किसी को और उसके बाद डायरिया हो जाए, दिस इज कॉल्ड पैरेंटल डायरिया। इट अकर्स बिकॉज ऑफ द सेप्टिसीमिया और बैक्टीरियमिया। एल्जिड मलेरिया में जो डायरिया होता है वो ये कि वॉर्न कर रहा होता है। तो मलेरिया के जो सिम्टम है वो आपको पता है, तो इसके साथ ये उससे क्या हुआ, उसको सीवियर डायरिया हो गया, इसको कहते हैं एल्जिड मलेरिया। अब सम फूड दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, पहले इसको समझ लीजिए। खाया क्या था, कहाँ खाया था, अब ये क्यों का सवाल तो नहीं कर सकते, जिसकी मर्जी है जहाँ से खाए। अंडा खाया था, एक अंडा जो है बर्गर वाला था, बगैर बर्गर वाला था, फिर उसके बाद जो है ना कोई आपने जो है स्टेक्स खाए थे या चिकन खाई थी जो फ्राइड थी, या आपने फ्रूट लिए थे बाज़ार से ख़रीदे थे और खाए थे, या आपने जो है वो कोई ऐसे ड्रिंक्स लिए थे जिनकी ऑथेंटिसिटी थी नहीं, या आपने जो है वो मिसाल के तौर पे जो है वो कोई मीठी चीज़ जो है वो ले ली थी, कस्टर्ड ले लिया था, या आपने कोई और रॉ चीज़ ले ली थी, जैसे फ़िश वगैरह होती है, लोग जो है फ्राई कराते हैं उसको, डीप फ्राई नहीं कराते, और इसी तरीके से वो स्टीम फिश होती है, प्रॉन्स होते हैं, या टिन फ्रूट्स होता है, टिन फ्रूट्स हैं। फिर रॉ फ्लोर किसी ने कहा, या किसी ने कहा कि भाई जो है ना वो कच्चा अंडा खाने से जो है ना वो फ़ायदा होता है, ऐसे ही खा जाओ। किसी ने कहा कि आप जो है डायरेक्टली जो है ना अगर फक्की मारें गेहूँ की या जौ की, वो उससे जो है ना डायरिया हो गया बाद में। या जो था वो मक्खन जो था वो आपने निकाला खुद, या मक्खन जो था वो बाहर पड़ा रहा, बहुत पुराना हो गया। और इसी तरीके से दूसरे फूड्स हैं, बड़ी लंबी लाइन है उनकी। ये सारी चीज़ें जो कल्चर मीडिया हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की, इसके साथ वाटर को ऐड अगर कर दें आप, सबसे ज़्यादा वाटर इम्पॉर्टेंट है। अगर वाटर जो है उसको सही तरीके से फ़िल्टर नहीं किया गया है, अगर फ़िल्टर आप करेंगे तो 95% सही फ़िल्टर हुआ तो हो जाएगा, पास्चराइज हो जाएगा, सही है, प्योर हो जाएगा, कह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ, 5% फिर भी चांस रह गए, तो फिर बॉइलिंग करके उसे सही करना चाहिए था। ये उन ममालिक में से हम शुमार किए जाते हैं जिनमें जो गवर्नमेंट जो है वो पानी भी नहीं दे सकती आपको पीने का, अफसोसनाक बात है। और वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, उनमें एक डिजीज़ जो वायरल
वायरस हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, और ये स्प्रेड करता है इन्फेक्शन। मैंने पहले भी बताया था एफ के साथ। फूड है, फीसिस है, फ्लाइज हैं, फोमाइट्स हैं, इनके ज़रिए जो है ना, फ्लूइड्स हैं, इनके ज़रिए जो है ये फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाएगा। ये चीज़ें जो होती हैं अहम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इससे हम पता लगाते हैं कि ऑर्गेनिज्म इंक्यूबेशन पीरियड से। अब देखिए, अगर किसी कोई आदमी आया, उसने कहा मैंने कुछ खाया और उसके 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे में हो गया, तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स नहीं हो सकती। ये केमिकल पॉइजनिंग हो गई है, उसको कोई केमिकल ऐसा चला गया है जो उन्होंने इस्तेमाल किया था प्रिजर्वेटिव के तौर पे, वो ख़राब हो गया था और उसने पॉइजनिंग कर दी। ये पॉसिबल हो सकता है अगर बहुत कम से मैंने खाया और आधे घंटे में गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस हो गया, या फिर फूड एलर्जी थी, उसको स्पेसिफिक फूड खाया, उसके बाद डायरिया हो गया। लेकिन अगर उसको जो है ना 2 to 4 आवर के बाद हुआ, जैसे कि इस केस में हुआ था, 4 घंटे बाद हुआ था ना, 12-1 बजे खाना खाया था, डाउन, उसके बाद डाउन में उनको तबीयत ख़राब हो गई थी, तकरीबन 3-3:30 बजे रात को। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसकी सोर्स क्या होगी? ज़्यादातर वो चीज़ें थी जैसे बर्गर आपने खाया था, उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनसे जो है ना स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है वो फूड पॉइजनिंग करता है। टिपिकली जो है ये जो आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं और आपकी जो कैंटीन्स होती हैं, उनमें ये चीज़ें बच्चे खाते हैं ज़्यादातर, और फिर उनको जो होता है उसी वक्त हो जाता है ये 2-3 घंटे में। यानी पहला लेक्चर अटेंड किया तो थर्ड लेक्चर ये क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान उनको नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, और बाद में घर जाके डायरिया हो गया। कंपाइलोबैक्टर का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 5 आवर्स नहीं है, डेज है। ये कंपाइलोबैक्टर जो है ये भी जो है ज़्यादातर रॉ मीट, रॉ फिश, इनमें ज़्यादा सोर्सेज हैं इसकी। ईस्चेरिचिया क्लास 0157 इसमें भी वो चीज़ें हैं जिनमें फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, वाटर है, ये सोर्स है इसकी ज़्यादातर। इसमें भी जो है ना वो टिपिकली जो है ना डेज में आता है, ये उस वक्त नहीं होगा। ये 48 आवर्स के बाद शुरू होगा, 2 से 5 दिन तक रह सकता है, 5 दिन। साल्मोनेला जो है उसका जो है वो 18 to 36 आवर्स है, यानी तकरीबन 1.5 दिन साल्मोनेला में। साल्मोनेला की सोर्स है वो एग्स हैं, चिकन, पोल्ट्रीज, इन चीज़ों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला है। साल्मोनेला दूसरे वाला है एंटीराइडिस है, और दूसरे वाले साल्मोनेला जो कहलाते हैं नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला से, वो उनकी सोर्स है। ये जो है ना ज़्यादातर ये इन आइटम से होते हैं। जो मैंने भी बताया, एग भी सेफ नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनिज्म जो है आइस के अंदर भी होता है। फालूदा खाया तो उसकी आइस जो थी उसके अंदर था, ये भी वाक़यात हो चुके हैं। शिगला जो है ये डिसेंट्री कॉज करेगा, लेकिन इसका जो है 1 to 3 डेज पीरियड है। ये डायरिया खाली नहीं कॉज करेगा, बल्कि एक्चुअली डिसेंट्री कॉज करेगा 1 to 3 डेज। शिगला का भी जो है ज़्यादातर जो है वो एनिमल सोर्सेस से ज़्यादा ओरिजिनेट करता है। हेपेटाइटिस ए जो है वाटर है, और जो फूड जो है जंक फूड्स हैं, और जो बाज़ार में छोले है, चाट है, दही बड़े हैं, इनसे स्टार्ट होता है। बच्चों में होता है, टीनेजर्स में होता है। ई जो होता है वो बड़ों में होता है। टिपिकली इसका जो है वो 25 to 30 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है। खाए हुए भी उसे याद ही नहीं है, भूल जाएगा वो। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव है, वीक, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन प्रेगनेंसी में चला गया, और ये चीज़ में होता है, ये पास्तिया में होता है, ये चीज़ें जो खाते हैं आप, कुक्ड आइटम्स बड़े शौक से लोग खाते हैं, उनमें लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस होता है। और इसका आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि 21 डेज, 3 हफ्ते बाद अफेयर हुआ। खाया हुआ था उन्होंने जो बड़े रेस्टोरेंट में खाया,
याद किया, बहुत याद किया, तो उन्हें याद आया कि 2-2.5 हफ्ते पहले खाया था। तो फिर ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस पकड़ा, मालूम चला कि इतने दिन पहले खाया था, अपीयरेंस हुआ उसका 3रे हफ्ते में। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हिस्ट्री अगर आप लेंगे 1 महीने की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है किसी को अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो अच्छी तरीके से लीजिए हिस्ट्री। ये वायरस नॉर्मल वायरस है, रोटा वायरस है, परवी वायरस है, इनके ज़्यादातर सिम्टम्स फ़ौरन अपेयर होते हैं। बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में कम होता है, और ये तकरीबन आपको 24 आवर्स के अंदर और ये 1.5 दिन में आपको मिल जाएगा। ये जो ऑर्गेनिजम्स लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म मिसिंग है, इसके अंदर जो मिसिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस है, जो कि फूड से रिलेटेड है, यानी जो फूड जो एनिमल से फूड आप खाते हैं ड्राइव करते हैं उनमें होता है परफरेंजिस, और उसका भी जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन जो है 2 से 3 दिन है। फिर एक और ख़तरनाक तरीन जो है ना फूड पॉइजनिंग है, और वो जो है टिन्ड फूड से जो होती है या रखी हुई फूड से, ख़ास तौर पर एनिमल सोर्स की फूड या टिन्ड फूड्स। तो क्लॉस्ट्रीडियम कौन सा वाला क्लॉस्ट्रीडियम होता है ये बताइए, बोटुलिज्म है। उसके अंदर जो है ना आपको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी मिलेंगी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर ये आप पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसको पकड़ना आसान काम नहीं है, कल्चर करो और फिर और बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि उस वक्त इमरजेंसी में तो कर भी नहीं सकते आप। इन्वेस्टिगेशन आप बाद में करा लें, DR कल्चर सेंसिटिविटी, स्टूल सीरोलॉजी, केमिकल एग्जामिनेशन ही करा लें। इस केस को जो डिस्कस किया था फूड पॉइजनिंग के तहत डिस्कस किया गया। इसमें जो आप जो करा सकते थे वो CBC करा सकते थे, फ़ौरन क्या करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं, यूरिन करा सकते हैं, और क्या कराएंगे, रैंडम ब्लड शुगर करा लेंगे। बाकी टेस्ट तो फिर बाद में होंगे ना, इससे पहले ही आदमी जो है ना आप एसेस करें डिहाइड्रेशन को। बस माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इसको आपको लेबल करना होगा। हिस्ट्री टेकिंग हो गई है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको बता देगा, और उसके बाद जो है ना फिर लाइन ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, ये अहम है। देखिए, अगर जितने भी फूड पॉइजनिंग होती हैं उनमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि वॉश आउट फिनोमेना कहलाता है। हमारे असातिज़ा कहते थे कि बंदे को खाना पीना बंद कर दो और सिप्स के अंदर उसको वाटर दो। मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता उसको 2 चमचे दे दिए, फिर 2 चमचे दे दिए, 2 चमचे दे दिए, वॉश आउट कराते हैं इसको। सारे के सारा ऑर्गेनिज्म जो है वॉश आउट हो जाएगा, या वोमिटिंग में होगा, ज़्यादातर स्टूल के अंदर बाहर निकल जाएगा। जनरल मेजर में यह है कि उसको पेशेंट को एडमिट करके उसमें इमरजेंसी में असेसमेंट कर लें, और 2 जो है ना लाइफ लाइन डाल दें उसको। अगर ये मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड में तो ये है कि आप जो है ना उसको बता दें कि आप जो है अपनी फ्लूइड का जो है ना मैनेज करें, एटलीस्ट 50 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे एटलीस्ट, और जो है ना सॉल्ट को बढ़ा दें, एटलीस्ट 15 ग्राम पर डे आपको बढ़ाना होगा माइल्ड में, या ORS दे दें, या मॉडिफाइड ORS दे दें, या पेरिट्रॉल दे दें। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर के अंदर आपको जो है ना वो पैरेंटल देना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते, इसमें लोगों की डेथ हो जाती है। उसको लिटा के रखें वॉमिटिंग करने के लिए बराबर में तसला हो, ताकि आप वोमेटिस को देख सकें, क्योंकि किस्म का वोमेटिस है, वही फूड पार्टिकल्स आएंगे उसमें नज़र। स्पेसिफिक मेजर उस सूरत में करते हैं जब आपको ये पता हो जाए, यानी ज़ाहिर है कि उसमें इंट्रावेनस आपको लाइन लगानी है, तो आपको जो है ना सबसे पहले जो देना चाहिए था रिंगोलेक्टिड देना चाहिए, उसके बाद नॉर्मल सेलाइन देना चाहिए, फिर 5% डेक्सट्रोज देना चाहिए था। 3 लीटर इसको फ्लूइड एटलीस्ट देना होगा। अगर मॉडरेट है तो 2 लीटर कम से कम 8 घंटे में हो जाना चाहिए, और सीवियर है तो 8 घंटे में 3 लीटर चला जाना चाहिए, तब ये बच जाएगा ऑपरेशन, वरना ये बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें आप इसका, वो जो आपने कर दिया, सोडियम रिप्लेस कर दिया, पोटाशियम अगर और कम आया तो सप्लीमेंट कर दें, पोटाशियम और डाल दें उसमें। एसिड बेस बैलेंस जो इसके साथ ही होगा, जो पोटाशियम को और क्लोराइड को और सोडियम को जो मैनेज करते हैं,
तो वो खुद ब खुद ही जो है ना वो एसिड बेस बैलेंस भी हो जाता है। कैलोरिक बैलेंस इसलिए है, या कैलोरीज का इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये एक्यूट फिनोमेना है, तो कैलोरीज को तो छोड़ दें आप, वो बैलेंस हो जाएगी जब उसकी तबीयत ठीक होगी तब। जो भी आपको देना है कैलोरी के लिए वो पैरेंटल दे दें, जो भी न्यूट्रिशनल थेरेपी हो वो पैरेंटल, ये स्पेसिफिक मेजर है। प्लस एंटीबायोटिक्स, अगर उसको सिम्टम्स मिलते हैं, फीवर होता है उसको, आपको मिलता है, सीवियर लिथार्जी है उसको, पल्स उसकी हाई है, लो वॉल्यूम है, उस सूरत में आप ऑर्गेनिज्म तलाश करें वो कौन सा है। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है ना वो पेनिसिलिन ग्रुप्स बहुत अच्छा है, सीधी बात है। इसमें लोग डरते हैं देते हुए, हालांकि इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ऑगमेंटिन अवेलेबल है, एमोक्सिसिलिन बहुत अच्छी ड्रग है, वो दी जा सकती है। ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरियाज हैं उसके लिए बेस्ट क्यूनोलोन्स हैं। आपको नहीं पता कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो फिर मैक्रोलाइट्स हैं। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, IV सोल्यूशन मिलते हैं, तीनों के मिलते हैं, इंट्रावेनसली आप इस्तेमाल करें। मॉडरेट में ओरल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ये सीवियर है तो इसमें इंट्रावेनस लगाना होगा। ग्राम पॉजिटिव के लिए जो है ना वो बीटा लैक्टेंट्स हैं, ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादातर क्विनोलोन्स हैं। आपको नहीं पता कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो फिर सबसे बेस्ट है मैक्रोलाइट्स हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेथ्रोमाइसिन है, इंट्रावेनस शुड बी गिवन। सिम्टोमेटिक मेजर्स में यह है कि एंटीमेटिक्स आप दे सकते हैं, डायमंड हाइड्रेट उसमें डाल दिया, और जो है ना इसी तरह से बस्कोपान जो है वो इंट्रावेनस दे दिया, या एनाफोर्टान इंजेक्शन आता है वो दे दिया। ये हायोसिन के डेरिवेटिव्स हैं सारे, एंटीस्पास्मोडिक्स हैं, वो आप दे दें अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है। देखिए जो ट्रामाडोल वगैरह है, ये चीज़ें ये नोजिएटिंग कंडीशन, ये और नोजिया बढ़ा देंगी। नंबर 1 ये स्पेसिफिकली स्पेजम करेंगी, स्फिंक्टर उड़ाएगा और दूसरी जगहों का। हम नहीं चाहते कि पायलोरिक कनाल को आप स्पेजम करा दें, बाकी चीज़ों को रिलैक्स कर देंगी। ये सेंट्रली एक्टिंग है, तो ऐसी ड्रग ना दें जिसमें पेशेंट पहले ही जो है ना वो लेथार्जिक है और उसका कॉन्शियस लेवल कम है, वो और ज़्यादा जो है ना ड्राउजी हो जाएगा। वो उस सूरत में दिया जाएगा जब उसको आपको लगे कि इसके अंदर जो सिम्टम हैं उसने पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर दिया है, पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही है, पेरिटोनाइटिस डेवलप हो रहा है, फिर तो ये फ़ायदेमंद है। अदरवाइज जो है ना वो सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक्स नहीं देने चाहिए। हम रिकमेंड नहीं करते, WHO रिकमेंड नहीं करती, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी रिकमेंड नहीं करती। अगर ये वायरल डायरिया था तो ये खाली ओरल और या डिजन सॉल्ट से या IV फ्लूइड से ये सही हो जाएगा, इसमें कोई भी एंटीवायरल ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है। जब बंदा जब ठीक हो जाता है, जब वॉमिटिंग रुक जाती है तो फिर डाइटरी मेजर्स करते हैं, फिर उसको जो है ना सेमी सॉलिड देते हैं, फिर थोड़ा मोर सॉलिड बढ़ाते हैं, आहिस्ता 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 करके उसकी ग़िज़ा को बढ़ाते हैं। ये काम आपका होता है, फिर उसको बता देते हैं अगर ये डायरिया ठीक नहीं होगा या बाद में दोबारा रिकर होता है तो फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन आपको करानी पड़ेगी, जो कि ज़ाहिर है इसमें कल्चर भी आएगा, स्टूल कल्चर भी आएगा, ब्लड कल्चर भी आएगा, सारा आएगा उसमें। क्योंकि एक साल्मोनेला जो है ना, याद रखिएगा, पैराटाइप है, फूड पॉइजनिंग के तौर पर प्रेजेंट कर जाता है, तो उसको नहीं। फिर ये होता है कि आपको जो ब्लड कल्चर चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए होते हैं, यानी मतलब ये कि वो बाद में होंगे, लेकिन इमरजेंसी में जो आप करते तेरे मेजर वो ये सारे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हैंडल कैसे करते हैं पेशेंट को। बाद में जो है ना काम कंसल्टेंट का है, वो ज़ाहिर देखे कि ये क्या ऑर्गेनिज्म हो सकता था, क्या स्पेसिफिक थेरेपी दे सकते थे, कल्चरल सेंसिटिविटी करवाए, ब्लड में करवाए, स्टूल में कराए, और इसको चेक करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।